नमस्कार दोस्तों। पिरामिड वैली इंटरनेशनल में 21, 22, 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव के शुभ अवसर पर पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट की सह संस्थापिका स्वर्णमाला पत्री जी और अन्य कर्नाटक के मास्टर्स ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस उत्सव में देश विदेश से हजारों ध्यानियों ने भाग लिया। संगीत ध्यान के पश्चात स्वर्णमाला पत्री जी ने कार्यक्रम के दौरान अपने संदेश दिए। स्वर्णमाला पत्री जी के संदेश तेलुगु भाषा में थे। पिरामिड मास्टर बुद्धिमती मैडम जी ने इनका हिंदी अनुवाद करके साझा किया, जो मैं अब आपके साथ साझा कर रही हूँ। इस बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव पर पत्री जी के संदेश का वीडियो भी सबके साथ साझा किया गया। संदेश अंग्रेजी भाषा में था, उसका भी हिंदी अनुवाद करके मैं आपके साथ साझा कर रही हूं, ताकि हमें ब्रह्मऋषि सुभाष पत्री जी का और श्रीमती स्वर्णमाला पत्री जी का पूर्ण संदेश समझ में आए। पत्री जी का संदेश हर एक इंसान को ध्यान को अपनाना ही है। हर रोज, प्रतिदिन, every day. Meditation is not a luxury. Meditation is a necessity, absolute necessity for every person. Food is a luxury, meditation is a necessity. Remember this point. Sleep is a luxury, meditation is a necessity. Meditation comes first. Everything else comes next. Talking, sleeping, eating, thinking, playing, singing, dancing. Everything comes next. First comes meditation. When you make your meditation the first priority in your life, then you become a Buddha. If you make meditation the last priority in your life, you become a Buddha. Either you are a Buddha or you are a Buddha. If meditation is any other priority other than the first priority, you are of course not a Buddha. But when you make your meditation the first priority, the first thing that comes in the day, then of course you are a Buddha. So, what is Buddhahood? Buddhatva andre yenu? What is meditation? Dhyanam ante emiti? ध्यान का मतलब क्या है? बुद्धत्व का मतलब क्या है? बुद्धत्व का मतलब ध्यान, ध्यान का मतलब बुद्धत्व. That's all, you know. Buddhahood means meditation and meditation means Buddhahood. They are alternate terms for the same concept. Meditation has got two wings, like a bird has got two wings. You know, you have to fly with two wings. You can't fly with one wing. These two wings are, remember this point, the two wings are mindfulness and meditation. పక్షి ఒకటే రెక్కలు రెండు, ఆధ్యాత్మికత ఒకటే రెక్కలు రెండు. ఈ రెండు రెక్కల పేర్లు ద బోత్ దిస్ పంచి ఏకీ హై పరంతు రెక్కలు ఏమంటారా హిందీలో? ఏమంటారా? पंख. पक्षी एक ही है परंतु पंख दो है. अरे थैंक यू ना.
आप बोले थैंक यू भाई। पक्षी एक ही है परंतु पंख दो हैं। అంటే ఆ పక్షి పేరేంటి? ఆత్మ. ఆ ఆత్మకి రెండు రెక్కలు ఉన్నాయి. ఏమిటి? మైండ్ఫుల్నెస్ అండ్ మెడిటేషన్. మైండ్ఫుల్నెస్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ యూ డూ, when you're doing. There are two things, doing and being. When you are doing, mindfulness. When you are being, meditation. See, you are just being. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? నల్లా పురీదా? Two things, ఆత్మ ఒకటి, రెక్కలు రెండు. The bird is one, okay? The wings of the bird, okay, are two. You are the Atma and you got two wings. Remember this point. You are the Atma, you are got two wings. ఒకటేమో మైండ్ఫుల్నెస్ అంటే ఏది చేసినా ఏకాగ్రతతో చేయాలి. వాట్ ఎవర్ యూ డూ, యూ షుడ్ డూ విత్ ఫుల్ ఫోకస్, ఫుల్ అటెన్షన్. Walk while you are walking, eat while you are eating, sing while you are singing, dance while you are dancing, talk while you are talking, listen while you are listening. Let not the mind wander other than the work on hand. The more you practice mindfulness, the more you get into meditation. As yesterday we said, Ramana Maharshi said, జాగ్రత్త అవస్థలో జాగ్రత్త ఉంటే సుషుప్తి అవస్థలో జాగ్రత్త వస్తుంది. If you are wakeful in the wakeful state, you will be wakeful in the sleep state. What happens when the sleep comes? In the sleep, the soul vacates the body. Okay, so when the soul vacates the body, when you are not a meditator here, you won't understand what happened during that time. You come back with vague remembrances. Those vague remembrances you call as dreams. So, if you want to be wakeful and aware in the sleep state, when you are out of the physical body, when you are into the astral body, then you must practice a lot of mindfulness in the wakeful state. That's what Ramana Maharshi's answer was. पत्री जी ने कहा, भोजन विलासता है, ध्यान आवश्यकता है, नींद विलासता है, लेकिन ध्यान आवश्यकता है। ध्यान सबसे प्रथम, बाकी सब बाद में। जब आप ध्यान को अपने जीवन में प्राथमिकता देते हैं, प्राथमिकता बनाते हैं, तब आप आत्मज्ञानी हैं। बात करना, खेल खेलना, गाना गाना, नृत्य करना, सब कुछ बाद में, सबसे पहले ध्यान। यदि आप ध्यान को अपनी आखिरी प्राथमिकता बनाते हैं तो आप बुद्धू हैं। या तो आप बुद्ध हैं या बुद्धू हैं। यदि ध्यान का आपके जीवन में प्रथम स्थान नहीं है तो आप बुद्ध नहीं, आप बुद्धू हैं। जब ध्यान आपकी प्रथम प्राथमिकता है, आपकी दिनचर्या में सबसे पहली चीज ध्यान है, तो आप बुद्ध हैं। बुद्धत्व क्या है? व्हाट इज बुद्धाहुड? व्हाट इज मेडिटेशन? ध्यान क्या है? बुद्धत्व का मतलब ध्यान और ध्यान का मतलब बुद्धत्व। ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। ध्यान के पक्षी की तरह दो पंख हैं। ध्यान के पक्षी की तरह दो पंख हैं। एक पंख से पक्षी उड़ नहीं सकता। ये दो पंख हैं, एकाग्रता और ध्यान, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। ये पक्षी आत्मा है। आत्मा के दो पंख हैं, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, एकाग्रता और ध्यान। जब भी आप कोई कार्य कर रहे हैं तो एकाग्रता के साथ करें, और जब कोई कार्य नहीं कर रहे हैं तो आप वर्तमान पल में रहें। इसे डूइंग एंड बीइंग कहते हैं। डूइंग अर्थात जो कर रहे हैं पूरी तरह उसमें डूब जाएं, ध्यान से करें। जब नहीं कर रहे हैं तो ये बीइंग की अवस्था है, यानी आप हैं। बुद्ध ने कहा, जब चल रहे हैं तो केवल चलें, जब खा रहे हैं तो केवल खाएं, जब गा रहे हैं तो केवल गाएं, जब नृत्य कर रहे हैं तो केवल नृत्य करें, जब बात कर रहे हैं तो ध्यान से बात करें, और जब सुन रहे हैं तो एकाग्रता से सुने,
मन को यहाँ वहां भटकने ना दें। वर्तमान में जो काम है उस पर मन एकाग्र रहे। वर्तमान में जो काम है उसी पर मन एकाग्र रहे। जितना आप जागरूकता का अभ्यास करेंगे, ध्यान करना उतना ही सुगम होगा। रमन महर्षि ने कहा, जागृत अवस्था में अगर आप जागृत हैं तो नींद में भी जागृत रहेंगे। नींद आती है तो क्या होता है? नींद में आत्मा भौतिक शरीर को छोड़ देती है। जब आत्मा चली जाती है, अगर आप ध्यानी नहीं हैं तो आपको कुछ भी पता नहीं चलता नींद में क्या हुआ। थोड़ी थोड़ी जो धुंधली यादें रहती हैं उन्हें हम सपना कहते हैं। यदि आप भौतिक शरीर के बाहर आकर भी एकाग्र और सचेत रहना चाहते हैं तो आपको जागृत अवस्था में एकाग्रता का अभ्यास करना होगा। यही रमन महर्षि जी का उत्तर था। सभी को बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बहुत ही अद्भुत दिन है। कल यहाँ तेज बारिश हो रही थी, आज मौसम बिल्कुल साफ है। प्रकृति हमारे ध्यान के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती है। ये सब ध्यान की ही महिमा है। हम सभी जानते हैं कि पत्री जी एक महान व्यक्ति थे, क्योंकि वे सभी से मिलते जुलते थे और अपने अर्जित ज्ञान को सभी में बांटते थे। एक राज्य में एक राजा था। उस राजा के दो पुत्र थे। बड़ा पुत्र राज्य संभालकर धन दौलत कमाना चाहता था, पर छोटा पुत्र राज्य नहीं बल्कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहता था। दोनों ही अलग अलग स्वभाव के थे। राजा को अपने बड़े बेटे से अधिक प्रेम था, क्योंकि वह राज्य का पालन करके सभी प्रकार के नियमों और सिद्धांतों को अपना रहा था। छोटा बेटा सदैव कुछ भी अपने पास ना होते हुए हर किसी के पास जाकर क्या सीखना है उन सब से सीखते हुए, जो कुछ उसने सीखा वह दूसरों को सिखाते हुए हर राज्य में जाकर वहां के राजा और प्रजा से मित्रता करता रहा। छोटे बेटे के अंदर राजा और सारी प्रजा को रूपांतरित करने की तड़प थी। ऐसा करते करते अनेक राज्यों में जाकर सभी को सिखाकर उन सभी राज्यों की प्रजा से प्रेम तथा गौरव को छोटे बेटे ने प्राप्त किया। ऐसे करते करते अनेक राज्यों में जाकर उन सभी को सिखाकर सभी राज्यों की प्रजा के प्रेम तथा गौरव को छोटे बेटे ने प्राप्त किया। बड़े बेटे ने राज्य प्राप्त किया, परंतु मानसिक शांति को खो दिया। सदैव युद्ध और विद्रोह के लिए वह तत्पर रहता था, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। छोटे बेटे का मार्ग बिल्कुल अलग था। पिता ने छोटे बेटे को छोड़ दिया और कहा कि राज्य में तुम्हें कुछ नहीं दिया जाएगा, तुम्हारा कोई हिस्सा यहाँ नहीं है। छोटा बेटा गांव-गांव तथा अनेक राज्यों में जाकर घूमते हुए विभिन्न गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करते हुए पुनः अनेकों राज्य और प्रजा को ज्ञान बोध कराते हुए घूमते हुए जीवन भर यही करता रहा। आध्यात्मिक राह पर चलने वाला ये राजा कौन है? आध्यात्मिक राह पर चलने वाला ये राजा हमारे पत्री जी हैं। पत्री जी लोगों को ध्यान और ज्ञान सिखाते हुए इतने बड़े साम्राज्य के राजा बने। पत्री जी ने ज्ञान, प्रेम और गौरव को प्राप्त किया। पत्री जी ने जो ज्ञान, प्रेम, गौरव और आत्मज्ञान प्राप्त किया वह बड़े बेटे को नहीं मिला। बड़े बेटे को ये अपनापन और प्यार नहीं मिला। वह हमेशा सभी को मारकर धन कमाने की सोचता रहा। छोटा बेटा सब कुछ छोड़कर सभी को ज्ञान और ध्यान बांटने निकल पड़ा। इस तरह पत्री जी ने आप सब लोगों का बहुत प्यार और गौरव पाया। दोनों में यही अंतर है, इतना बड़ा फासला है। बड़ा बेटा हमेशा पैसे कमाकर आराम से जीवन जीने की सोचता था कि मैं आनंद और उल्लास से जीवन बिताऊंगा। छोटे बेटे ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए और वह आत्मज्ञान पाने के लिए चला गया। ये हमारे घर की कहानी है। पत्री जी हमेशा सड़कों पर घूमकर लोगों को ध्यान सिखाते रहे। कहीं भी बैठकर बांसुरी बजाते थे। उनके पिता कहते थे कि बांसुरी बजाने से क्या तुमको पैसा मिलेगा? क्या फायदा है? कहते थे बेकार के काम करते हो जिससे एक पैसा भी कमा नहीं सकते। ऐसे ज्ञान की क्या जरूरत है? ऐसे ज्ञान का क्या लाभ है?
ऐसा ज्ञान किस काम का। पत्री जी ने इतने लोगों का प्यार और प्रेम पा लिया। उन्होंने बांसुरी बजाकर यही सब कमाया है, यही सब पाया है। ध्यान सीख कर, ध्यान करवा कर इतने बड़े साम्राज्य को प्राप्त कर लिया। ये राज्य जरूरी है कि वह राज्य जरूरी है। जो पत्री जी ने कमाया उसकी कोई चोरी नहीं कर सकता, उससे कोई लूट नहीं सकता, उसे कोई बर्बाद नहीं कर सकता। उनके साम्राज्य को कुछ नहीं हो सकता। दूसरे राज्यों को तो दूसरे राजा आकर लूट सकते हैं, पर पत्री जी के साम्राज्य को कोई लूट नहीं सकता। हम लोगों को पैसों से भी अधिक ध्यान और ज्ञान की आवश्यकता है। उसे कोई छीन नहीं सकता, उसे कमाना है। आप लोग सब ध्यान कीजिए, सभी को ध्यान सिखाइए। हमारे पास इतना ज्ञान है कि कोई भी आपत्ति या संकट हमें हो नहीं सकता। इस ज्ञान से हम किसी भी परिस्थिति में, कठिनाई में खड़े होकर अपनी समस्या को हल कर सकते हैं। अगर ये ज्ञान नहीं होता तो हम यहाँ खड़े नहीं रह सकते थे, हम उस संकट में बह जाते। हमारे लिए ध्यान और ज्ञान एक महान हथियार है। इससे कभी भी किसी भी संकट से हम पार पा सकते हैं। बड़ा बेटा तलवार से मार काट के राज्य प्राप्त किया और छोटे बेटे ने ध्यान और ज्ञान से इतने बड़े साम्राज्य को पा लिया। हम सभी को ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करना चाहिए। जो नए लोग हैं उन्हें भी हमें ध्यान सिखाना है। ध्यान सभी को बांटना है, शाकाहारी बनाना है, अगर हो सके तो पिरामिड बनवाने हैं। हम सब ऐसे महान अवसर पर मिले हैं और मिलकर ध्यान कर रहे हैं, प्रेम से एक दूसरे से बात कर रहे हैं और सीख रहे हैं। थैंक यू। ये था स्वर्णमाला पत्री जी का और ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी का बुद्ध पूर्णिमा के महोत्सव पर दिया गया संदेश। अगली कड़ी में का संदेश आपके साथ साझा करूंगी। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।